Hello everyone. Today in this class we are going to talk about the exercise 7.3. Up to the 7.2 we have discussed in the last videos. Now I am starting from the very first question. The exercise is based on the topic triangles. And the given question first is triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC. Statement of the first question is two triangles ABC, structure is given in the book. ABC and DBC are two isosceles triangles. Let's suppose this is the, according to the question, it is ABC and this is DBC. Clear? And which lie on same base BC. After it, and vertices A and D are on same side of BC. Vertices A and D lie on same side of BC. मतलब BC के एक ही साइड में दोनों vertices exist कर रहे हैं. If AD is extended to intersect BC at point, AD को extend करवाया, when we produce AD, then it will intersect BC at point P. Then show that there are total 4 parts are there. First part को अपन select करेंगे. देखो जो हमें prove करना है, first is triangle ABD. It is congruent to triangle ACD. Second, triangle ABB is congruent to triangle ACP. Third is triangle AP bisect angle A. Angle A and angle D. Fourth is AP is perpendicular bisector of BC. These 4 things we have to prove. So let's start. First of all, to prove the first one, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD. ABD and ACD both are congruent. How? I am selecting both of the triangle from triangle ABD and triangle ACD. Select the given triangles and then ABD, in this triangle side AB is equals to AC of the triangle ACD. Clear? AB is equals to AC. This is given. After it, BD is equals to CD. It is also given. And AD is common in both the triangle. AD is equals to AD, which is common. Got it? अब देखो यहां से क्या मिला हमें, SSS ट्रिपल क्राइटेरिया. Triangle ABD is congruent to triangle ACD. क्लियर है? यहां तक हमने क्या प्रूव कर दिया? ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD. First we have proved. Now let's talk about the second one. सेकेंड में हमें प्रूव करना है ABP is congruent to ACP, है ना? अब देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये तो पता चल गया हमें. ये साइड कॉमन हो गई. क्लियर है बात यहां तक?
ये साइड कॉमन, ये साइड इसके इक्वल, तो थर्ड साइड बीपी और पीसी के बारे में हमें अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, सो वी कैन नॉट कंसिडर दीज बोथ आर इक्वल। तो हम एस एस से कोई क्राइटेरिया नहीं होता, इसका मतलब हम एस ए एस अप्लाई करेंगे, एस ए एस, तो इसके बीच वाला ये एंगल देखो, ऊपर वाले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल होंगे। तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इफ triangle ABD is congruent to triangle ACD, then angle BAD is equals to angle CAD, angle CAD। और यहाँ पे यूज ले रहा हूं मैं यूजिंग CPCT। क्लियर है यहां तक? अब देखो BAD का मतलब ही है BAP, तो यहां से BAD को अपन बोल सकते हैं एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल CAP, बिकॉज CAD मीन्स CAP। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, ये दोनों इक्वल हुए। अब देखो थोड़ा सा और समझते हैं। Again from triangle B, हमें कौन सा प्रूव करना है? ABP एंड ABP एंड ट्रायंगल ACP। ध्यान से देखना, AB is equals to AC, it is given। एंगल BAP is equals to एंगल CAP, it's proved। बात समझ में आएगा? देखो ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये दोनों एंगल इक्वल हुए, एंड एंगल AP is equals to AP is equals to AP which is common, SAS criteria। ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACP। This is the second part we have solved। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड हमें प्रूव करना है AP बाइसेक्ट एंगल A। तो ये तो हो गया AP बाइसेक्ट एंगल A, ये तो अपन ऑलरेडी यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ we proved that angle BAP is equals to angle CAP, therefore AP is bisector of एंगल A। ये थर्ड में एक पार्ट और बच गया एंगल D के लिए। एंगल D के लिए हमें मतलब ये और बताना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होने के लिए देखो ध्यान से समझना, या तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, क्लियर, या फिर हम करें कि ये दोनों एंगल इक्वल है। हमें यहाँ से ये पता चल गया, चलो यार हटा दो इसको, मैं थोड़ा सा दूसरा स्टेटमेंट यूज ले रहा हूँ। इफ ट्रायंगल सेम टू सेम यही ABD is congruent to triangle ACD, then angle BAD is equals to angle CAD, angle BAD is equals to angle CAD। ठीक है, एक तो इक्वल प्रूव हो गया, अब हमें ये और प्रूव करना है, इधर वाला ये वाला। तो एंगल BDA एंड एंगल B, इसको इक्वेशन को फर्स्ट बोल रहा हूँ, एंगल BDA इज इक्वल्स टू एंगल CDA। CPCT से अप्लाई हो गया है ना। अब ये दोनों एंगल, ये D है, इफ दिस टू एंगल्स आर इक्वल, तो हमें ये पता है इसका, देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों 180 के इक्वल होते हैं, तो
तो दोनों इक्वल होंगे। वी नो दैट एंगल ADB प्लस एंगल BDP इज इक्वल्स टू एंगल ADC प्लस एंगल CDP। ध्यान से समझना, एंगल ADB प्लस BDP इन दोनों का सम इन दोनों के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना 180 और इन दोनों का सम भी कितना 180 डिग्री, तो दोनों इक्वल हुए। ADB एंड CDA ये दोनों इक्वल है, तो कैंसिल कर सकते हैं। रिजल्ट क्या मिला हमें, एंगल BDP is equals to angle CDP. This is the equation number 2. So from equation 1st and 2nd, we can say that AP is bisector of एंगल A एंड एंगल D। ये अपना थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में प्रूव करना है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज परपेंडिकुलर मतलब मींस ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। देखो यहां से अपन ने ये प्रूव किया था, ट्रायंगल इफ ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP देन बाई CPCT से क्या होगा, देखो AP इज इक्वल्स टू नहीं है, BP इज इक्वल्स टू CP, BP इज इक्वल्स टू CP, तो ये हो गया BP इज इक्वल्स टू CP, BP इज इक्वल्स टू CP। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेता हूं मैं। एंड एंगल APDB इज इक्वल्स टू एंगल APC। देखो APB इज इक्वल्स टू APC, एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC। ठीक है बात यहाँ तक, दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब हमें ये बताना है कि 90 डिग्री का एंगल बना है, तो इन दोनों का सम ऑफ दिस बोथ एंगल विल बी 180 डिग्री। सो एंगल APB वी नो दैट एंगल APB इज प्लस एंगल APC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर है यहां तक, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब APB किसके इक्वल है, APC के, एंगल APC प्लस एंगल APC is equals to 180 degree, twice of angle APC is equals to 180 degree, और angle APC is equals to 90 degree. APC is 90 degree, then APB also 90 degree. Therefore, angle APB is equals to angle APC is equals to 90 degree. This is the equation number 4. From 3rd and 4th, we can say that AP is perpendicular from here, perpendicular bisector from here, from equation 3rd, bisector of साइड BC। क्लियर है, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट हुआ, एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट, एंड इट इज द फोर्थ पार्ट, एंड फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर 1st। आई होप सो यू अंडरस्टूड, सो प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन।